एडी करंट कंसेप्चुअल है सिर्फ आपके। एडी करंट्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा? बहुत सिंपल सी बात है। क्या? वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with magnetic flux linked with a circuit, EMF is induced. And if circuit is closed, circuit is closed, circuit is closed, induced current flow through the circuit, and this current oppose the, this induced EMF, this induced current oppose the uh, cause of its induction. ये सिंपल सा इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन है हमारा, जो हमने अब तक समझा हुआ है। ठीक है, अब एक मेरे पास एक लूप है, एक लूप है, थिन वायर लूप, और ये लूप बिल्कुल क्लोज्ड है, कहीं पर भी इसमें कट नहीं है। रिंग की तरह, अंगूठी में उंगली में पहनने वाले अंगूठी की तरह बिल्कुल क्लोज लूप है। ठीक है, नाउ इफ दिस लूप इज एक्सपोज टू अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मींस इसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया आपने, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो घट रहा है, बढ़ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, किसी भी तरह से वेरी कर रहा है। If this ring is exposed to a variable magnetic field, the magnetic flux linked with the ring will change, keep on changing. If the magnetic field is not constant, if the magnetic field is always variable, the magnetic flux linked with the ring, linked with the loop will keep on changing. Continuously बदलता रहेगा ये. So an EMF is induced in the ring, and since this ring is a closed circuit, induced current will flow such that it opposes the cause, means the change in variation of magnetic field. It will oppose the variation of magnetic field. Now if I place another ring inside it, another ring inside it, another ring inside it, same thing will happen to this ring. If I place one more ring inside it, if I place one more ring inside it, the same phenomenon will happen. If a large number of rings are placed coaxially, कोएक्सियली कैसे? जैसे आप प्याज छील लेते हैं तो प्याज का छिलका उसमें दिखाई देता है, एक ये छिलका और ये एक प्याज, ये फिर एक प्याज का छिलका, ये ऐसे कोएक्सियली आपने ढेर सारे रिंग्स बना लिए। ठीक है, ऐसे कोएक्सियली रिंग्स बना लिया आपने, बीच में समझ लीजिए गैप बिल्कुल भी नहीं है, इसका बिल्कुल गैप नहीं है, क्लोजली पैक्ड है एकदम। तो क्या होगा? हर एक रिंग में इंड्यूस करंट इंड्यूस हो जाएगी, बिकॉज ईच रिंग इज अ क्लोज्ड सर्किट, ईच रिंग इज अ क्लोज सर्किट, current will induce. Now what will happen? This induced current will oppose the cause of its induction. Here the cause is variation of magnetic field. Right. Now consider this, this arrangement of large number of rings is a plane sheet. Is a plane sheet. Just like this paper, it is a plane sheet. Means this plane sheet may be considered as large number of rings placed very close to each other. So if this sheet is again exposed to variable magnetic field, there will be current induced inside the sheets. हमें कभी दिखाई भी नहीं देती करंट ये, but they will induce inside the sheet, because a sheet can be considered to be made up of a large number of closely packed rings. जरूरी नहीं कि मैं एक ही रिंग यहाँ लूँ पूरा, अगर एक शीट है मेरे पास ये, तो रिंग ए यहाँ भी पॉसिबल है, रिंग एक ऐसा ही 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 पॉसिबल है। देयर इज
infinite possibilities of making closed rings, closed circuit. So each closed circuit will induce a current. Simple as. Now this is a plain sheet. If you have some solid block, a block, this sheet may be rectangle, may be circular, may be of any shape, doesn't matter. Closed rings will be formed inside the sheet, over the sheet. Now if it is a block, if it is a solid block, so there is larger possibilities of making or forming closed loops थ्री डायमेंशनली. ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये बन सकता है. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ possibilities of formation of closed loop. If this solid is exposed to a variable magnetic field, eddy currents will develop inside this loop. Induced current will be induced in this loop. These currents are called eddy currents. So what are eddy currents? Eddy currents are the induced current when a material in bulk is exposed to variable magnetic field. When a material in bulk is exposed to a variable magnetic field, eddy currents are induced. Eddy currents are the induced current. Simply induced current है. एडी करंट का एक नाम और है इनका फौकॉल्ट करंट. दो साइंटिस्ट के नाम पर है. एडी भी साइंटिस्ट है, फौकॉल्ट भी साइंटिस्ट है. फौकॉल्ट करंट भी कहते हैं, एडी करंट भी कहते हैं. तो एडी करंट्स आर द इंड्यूस्ड करंट. Eddy currents are the current induced when a material in bulk is exposed to variable magnetic field. Right. Now what is the function of these eddy currents? Eddy currents are the induced current. Simply they will oppose the cause behind their induction. Means they oppose the variation of magnetic field. They are always oppose the variation of magnetic field. One more thing. This is a metal loop. This one is metal loop. All the loops formed inside a metal are metal loops. Metal shows some resistivity. अगर मैं इस वाले बाहर वाले लूप की बात करूं, it may be considered to be made up of a very thin wire. So each wire shows a resistance rho L by A. A is the cross sectional area. A is not the area of this face. A is the cross sectional area of this wire. Rho L A. And when a current is set up, in this wire, in this conductor, heat is generated in accordance I square RT. T is the time for which current is passed. Heat is generated I square RT. So what happens? When a material in bulk is exposed to a variable magnetic field, eddy currents are induced, and these eddy currents result in the production of heat. Conversion, not actually production, conversion of one kind of energy into heat energy. वो one kind of energy कौन सी होगी? The energy of the source which is carrying out variation in magnetic field. जो source magnetic field में variation create कर रहा है, उस source ने जो work किया, वो जो किसी भी energy की form में, that energy get converted into heat energy. And one of the most suitable use of eddy currents, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, सबके घरों में आजकल यूज हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन कुक टॉप. सबके घरों में आजकल यूज हो रहा है, ज्यादातर घरों में. तो देयर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ वेइंग स्केल. पतला सा एक स्ट्रक्चर है.
if you don't place anything over it, it does not get heated up. आपने इसे इलेक्ट्रिसिटी से लगा दिया, ऑन कर दिया, ऑन ही नहीं होगा एक्चुअली से. If you don't place anything over it, if you place a non-magnetic material, if you place non-magnetic material, suppose paper, suppose your towel, your book, nothing happens. It does not get heated up. As soon as you place an iron vessel on it, सपोज आपने कढ़ाई रख दी इसके ऊपर, या तवा रख दिया आपने इसके ऊपर, या इस पे चलने वाले कुछ स्पेशल यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें नीचे एक आयरन शीट चिपकी हुई होती है, तो वो सपोज आपने आयरन की एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इट गेट हीटेड अप. एक्सेप्ट आयरन, नथिंग गेट हीटेड अप. अगर सिंपल नॉर्मल प्रेशर कुकर आपने इसके ऊपर रख दिया तो हीट नहीं होगा. इसके ऊपर एक चलने वाला एक प्रेशर कुकर अलग आता है, उसमें नीचे आयरन की स्टील की प्लेट लगी होती है. तो आपने इसके ऊपर आयरन रखा, एकदम गर्म हो गया. तो बेसिकली दिस इंडक्शन कुकटॉप हैज ए कॉइल inside it, and this coil form a very strong magnetic field, variable magnetic field that vary at a rate of few thousand cycles per second, few thousand hertz. जो वेरिएशन है, उतार चढ़ाव इसका, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, इट इज वेरी फास्ट, मे बी मोर देन 25 hertz. तो एक very strong variable magnetic field is applied on the base of your vessel. जो आपका लोहे का बेस है इस वेसल का, इसको आपने एक्सपोज कर दिया एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में. एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड and these eddy currents cause some form of energy into heat energy. What is the form of energy here? In the case of your cooktop, the form of energy you are giving to cooktop is electric energy. So this cooktop directly convert electric energy to heat energy. In your conventional heater, एक जो कन्वेंशनल हीटर होता है जिसमें कि एक वो एलिमेंट लगा हुआ होता है, ऐसे ऐसे घूम करके वो एलिमेंट लगा हुआ होता है. Heat is created by I square RT. R is the resistance of element. Then you put a vessel. This heat has to travel from your heater, your heating element, to the top through air, and a lot of heat is lost. अगर आपने हीटर कोई चला रखा है तो उसके चारों तरफ भयंकर गर्मी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कहीं कुछ चल भी रहा है. Since this induction cooktop does not produce heat, it directly do not convert electric energy, heat energy into heat energy. It create a variable magnetic field, and that variable magnetic field induce eddy current inside the vessel of, inside the bottom of the vessel of, whatever it is, कढ़ाई है, तवा है, जो कुछ भी है. So there is no transfer of heat, because heat is generated, heat is induced where it has to be. In a normal conventional device, heat is induced in an element, then it has to travel from element to the utensil through air. A lot of heat is lost. Here the heat is generated in the bottom of vessel itself. There is no need to transfer. The heat is generated where it has to be, where it is to be used. Therefore it is much efficient than these conventional heaters. So this is the use of, one of the use of eddy currents. Another use of eddy currents, हमने galvanometer coil पढ़ा था. This is a coil of galvanometer placed between north pole and south pole, and there is a soft iron core between them which make the magnetic field radial. और आपको ये पहले शायद याद हो, this coil is wound over a aluminium frame, only aluminium frame, no, not a plastic frame, not a paper frame or anything. So why it is, when you set up a current in galvanometer, it provides a torque and restoring torque take heat, tau theta. So it start oscillating. A coil experience two forces, two torques. One due to magnetic force on current carrying loop,
एंड द अदर अदर मेरा मेरा कॉइल खो गया, कहाँ चला गया मेरा कॉइल? मेरा कॉइल, एक कॉइल है, कॉइल को आपने एक्सपोज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर एक टॉर्क लगा, टॉर्क ने इसे रोटेट करना शुरू कर दिया, टॉर्क लगा, टॉर्क ने इसे रोटेट किया, और जो उस ऊपर आपके वो लगा हुआ था फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और नीचे लगी हुई थी आपकी हेयर स्प्रिंग, इन दोनों ने रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर दिया। तो एक जगह पहुंचकर आपका जो ये मैग्नेटिक टॉर्क है, मैग्नेटिक टॉर्क है, एक जगह पहुंचकर टॉर्क मैग्नेटिक बिकम टॉर्क, जो कौन सा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। लेकिन वहां पहुंचने तक गेन कर चुका है मोमेंटम, कौन? ये कॉइल। यहाँ ये कॉइल की पोजीशन थी नॉर्मल, आपने करंट डाली इसमें, रोटेट हुई, और रिस्टोरिंग टॉर्क दे रहा कौन? फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। कहीं पर जाकर के रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल होगी, लेकिन वहां पहुंचने तक तो इसने मोमेंटम गेन कर लिया। सो इट पास थ्रू दैट पोजीशन, आगे और निकल जाएगी, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ गया, तो वापस आती है, फिर वापस, और इस तरह से क्या होता है, ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देती है। और वो ऑसिलेशन अगर बहुत देर तक चलते रहे तो आप रीडिंग नहीं ले पाएंगे, इसकी रीडिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये पॉइंटर कहीं रुकेगा नहीं और तेजी के बार बार इधर उधर डोलता रहेगा इधर उधर। तो क्या किया जाता है, दिस एल्यूमिनियम फ्रेम, अब क्या होता है इस एल्यूमिनियम फ्रेम से? इट इज अ मेटेलिक फ्रेम, when it oscillates it intercept the magnetic field line, means the magnetic flux linked with this aluminum loop changes, and hence eddy currents are developed. Eddy currents always oppose the cause of its induction. What is the cause of its induction? The oscillation of coil in magnetic field. Eddy currents are induced in this frame, and these eddy currents oppose the cause. What is the cause? The oscillation of coil inside this, and hence these oscillations are damped, are damped soon. जल्दी से ये ऑसिलेशन खत्म हो जाते हैं और आपकी जो निडल है वो एक जगह रुक जाती है। कभी आप करके देखना, ये आपके घर स्टेबलाइजर रखा हुआ, आप स्विच ऑन करेंगे तो 2-3 बार तो उसकी निडल ऐसे ऐसे चलेगी, और फिर 220 या 200 वोल्ट जो भी आ रहे हैं वहां आकर के रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहां डैम्पिंग के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट बना दिया गया बाय द यूज ऑफ एडी करंट्स। ठीक है। एडी करंट्स का और भी कई जगह यूज किया जाता है। जो आपके नॉर्मल मोटर्स हैं, आपके फैन मोटर है, कूलर मोटर है, एसी मोटर है, ऑल दीज मोटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन करंट, एंड हेंस दीज आर कॉल्ड इंडक्शन मोटर। याद है आपको 3 इडियट? सो वो कहता है कि साइरात क्या कर रहे थे, इंडक्शन मोटर प्रिपेयर कर रहा था। सो हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट? इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट, इंड्यूस करंट पर डिपेंड करता है। आप आगे चल के पढ़ लेंगे इसकी पूरी डेफिनेशन, थ्योरी वोरी अगर आपने कहा तो। एक और एप्लीकेशन इसका बहुत बढ़िया है, वो होता है आपके इंडक्शन ब्रेक्स। देखो, जो नॉर्मल आपका कन्वीनियंट नॉर्मल ब्रेक होते हैं, जैसे कि आपके डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है आपकी बाइक में लगा हुआ, तो वहां पहिए के साथ एक डिस्क लगी हुई है जो पहिए के साथ साथ घूम रही है, और दो अलग अलग, दो अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर लगे होते हैं एक ब्रश, रबर के या चमड़े के होते हैं। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये दोनों ब्रश इसके ऊपर आकर के टकरा जाते हैं। शू इन्हें बोलते हैं हम, ब्रेक शू। शू इसके ऊपर आकर चिपक जाते हैं, तो मोशन, फ्रिक्शन से ही मोशन रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो आपके शूज जो है लगातार ये घिस करके स्मूथ होते चले जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है। और आपने कभी ध्यान से देखना, नई बाइक जब निकल कर आएगी तो ये जो डिस्क है इसका, इसको भी स्मूथ नहीं बल्कि थोड़ा रफ बनाया जाता है, इसके अंदर कट्स डाल दिए जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो आपके ब्रेक शूज हैं ये घिस घिस करके स्मूथ हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फिर आपका मैकेनिक कहता है, भैया जी देखना, तुमने तो शू सारे घिस दिए, इसके शू बदलवा लो वरना कहीं पे ठुक जाओगे, ब्रेक नहीं लगने के इसके। तो जब ये फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फिजिकल डैमेज होता है, वियर एंड टीयर होता है। लेकिन जो बहुत बड़े व्हीकल है, ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उनमें क्या किया जाता है कि एक स्पेशल टाइप का ड्रम होता है, एक शू डिस्क की बजाय एक ड्रम होता है, और बहुत इसके स्ट्रक्चर, एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है इसका, अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। दो अलग अलग तरह के मेटल से मिलकर बना था, आयरन और एल्यूमिनियम से, एक फेरो एक नॉन मैग्नेटिक।
और ये पहिए के साथ साथ रोटेट कर रहा है, पहिए के साथ साथ रोटेट कर रहा है। जब गाड़ी को रोकना होता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ क्रिएट कर देते हैं। उससे इसमें एडी करंट डेवलप होती हैं, और वो एडी करंट क्या होती हैं, उसके मोशन को रोक देती हैं। भाई जब ये रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन लाने के लिए इसको दो अलग अलग मेटल से बनाया जाता है, अलग स्ट्रक्चर होता है इसका। ये तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया, लेकिन ये पूरा सॉलिड आयरन का बना हुआ नहीं है, कुछ बीच में इसके दूसरा मेटल भी होता है। तो उस मेटल्स के आने से वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, एडी करंट बन जाएंगी, एडी करंट बन जाएंगी तो मोशन को अपोज करेंगे, कॉज को अपोज करेंगे, और आपका ब्रेक लग जाएगा। मतलब कोई फिजिकल डैमेज, फिजिकल वियर एंड टेयर नहीं है। इस ब्रेक ड्रम के आस को ब्रेक शू से टच नहीं करना, ये अलग है। और मैग्नेटिक फील्ड वाली जो कॉइल प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये अलग है। इसलिए हम विदाउट वियर एंड टीयर बहुत लंबे टाइम तक इन इस ब्रेकिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं।